Okay, so today we start directional derivative. Now, whenever I am having a function of two variables, right? जब मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हम लोगों ने अब तक पार्शियल डेरिवेटिव सीखा है, partial derivative fx and partial derivative fy. The partial derivative in the direction of x-axis, y is treated as constant, and partial derivative in the direction of a y-axis, x is constant, right? So it means so far I am having the concept of derivative along x-axis and the y-axis. What happens if I am giving any arbitrary डायरेक्शन? ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा और भी डायरेक्शन हो सकती हैं, तो उस डायरेक्शन के अलोंग डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? दैट इज डिफाइंड बाय डायरेक्शनल डेरिवेटिव. इट मींस आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मुझे मिलेगी. ठीक है, सपोज आई एम हैविंग ए प्लेन एक्स एंड वाई, राइट? Let me say there are two independent variables x and y, and z is the dependent variable. तो जो explicit expression है, z is equal to fx comma y. Here x and y are independent variables and z is dependent. तो जब x और y की वैल्यू चेंज होगी तो z की वैल्यू चेंज होगी. तो x एक्सिस के अलोंग जो रेट ऑफ चेंज है वो fx है, और y एक्सिस के अलोंग जो रेट ऑफ चेंज है वो fy है, पार्शियल डेरिवेटिव. अब सपोज करो ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, लेट मी से p0 x0 एंड y. ठीक है, मेरे पास z क्या हो, z0 हो जाएगा, fx0 एंड y0. अब जैसे ही ये x0 y0 पॉइंट मूव करेगा, xy प्लेन में मूव करेगा, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है. यस सर. ठीक है ना, और जहां पर मूवमेंट होगा, चेंज ऑफ वैल्यू होगी, वहीं पर ही डेरिवेटिव की कॉन्सेप्ट आएगी. तो सपोज मैं बात करता हूं इस फंक्शन की वैल्यू जो चेंज हो रही है, किसी भी वेक्टर जो पास कर रहा है आपका p0 से, और ये वैल्यू जो वेक्टर की डायरेक्शन दी जा रही है, लेट मी से दिस इज इक्वल टू u1 i कैप प्लस u2 j कैप. इज इट ओके? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. तो ये जो u इक्वल टू u1 i कैप प्लस u2 j कैप है, इस डायरेक्शन के अलोंग मुझे डेरिवेटिव को डिफाइन करना है. इज इट ओके? किसी भी स्ट्रेट लाइन को जब हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? Equation of line passing through x0 y0 and in the direction of u1 i cap plus u2 j cap in a parametric form. Equation of line through point x0 y0 and in the direction of u1 i cap plus u2 j cap is given in parametric form
x is equal to x0 plus u1s and y is equal to y0 plus u2s, where s is the parameter. S is the parameter. Okay, right? Because this is the equation of the line. Is it clear? x0 y0 से लाइन पास हो रही है और डायरेक्शन क्या है? u1 I cap plus u2 j cap. u1 is the component along change in x-axis and u2 is the component change along y-axis. तो s अगर पैरामीटर है तो उस लाइन पर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट xy, x कोऑर्डिनेट विल बी गिवन बाय x0 plus u1s and y will be given by y0 plus u2s. Now we are in the position to define the directional derivative. Let us come to the definition. The directional derivative of a function f x comma y at point p0 at point p0, that is nothing but x0 y0 along the direction u is equal to u1 I cap plus u2 j cap is given by df over ds. Okay, because both x and y are represented in terms of a parameter s. So now f can be defined as a function of s. Is it okay? तो जो भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात हम लोग करते हैं, दैट वी डू ए विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर s. Is it okay? df over ds at point p0 and in the direction of u, this is defined by limit s tending to 0 f at x0 plus su1 comma y0 plus su2 minus fx0 y0 divided by s. This is the definition of the directional derivative of f at point p0 along the direction u1 I cap plus u2 j cap, provided the limit exists. Is it clear? Yes, sir. Right? Now let us connect this definition to the definition of partial derivatives. What is partial derivative with respect to x? Sir, That is the derivative of the function along x axis. खांसी खुल के नहीं आ रही और रुकी नहीं रही है। मेरा लास्ट स्टेज है। Okay? Yes, sir. Now what is the vector representation of x axis?
I cap. ठीक है ना? So x axis, this is I cap. So what is the value of u1? This will be 1, and what will be the value of u2? 0. This will be 0. Clear? So now along x axis, df over ds at p0 comma x, this will be equal to limit s tending to 0. This will be f x0 plus s. Comma y0. Minus f at x0 y0 and divided by s. What is this? This is the definition of partial derivative of f with respect to x. Is it okay? So this is equal to del f over del x at pointer p0. Okay? So now we can connect the definition of directional derivative with the definition of partial derivative. Is it okay? Yes. And similarly, what will happen along y-axis? What is the vector representation of y-axis? That is j cap. So now here u1 is equal to 0 and u2 is equal to 1. Is it fine? So then df over ds at point p0 and in the direction of y, this will be equal to limit s tending to 0. That will become fx0 comma y0 plus s. fx0 y0 plus s minus fx0 y0 divided by s. What is this? This is the definition of partial derivative of f with respect to y. Clear? At point p0. So this is del f over del y at point p0. Fine. So in this way, now we are in a situation, I am having the definition of the partial derivative with respect to x-axis and then with respect to y-axis. Now after this I can define the derivative of a function of two variables at any point and along any arbitrary direction. Clear to all of you? Yes. ठीक है ना? तो जो x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है वो, y एक्सिस के अलोंग जो चेंज हो रहा है वो, और किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के अलोंग चेंज हो रहा है वो. अब हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है. इज इट क्लियर? अब इस डेफिनेशन को हम आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी करते हैं और एक नई कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट. क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट. Is the definition of directional derivative clear to all of you? अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है. भाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्लियर हुई ना? इधर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. तो नाउ वी डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रेडियंट.
what is now the meaning of the gradient? Okay, let me have a function fx comma y. Z is equal to fx comma y. This is given function. Of course, this is differentiable, continuous, and all that. Those the requirements are satisfied automatically. We assume all that. Now, what is the meaning of gradient? Gradient is basically a vector quantity. Z is equal to fx comma y. This is a स्केलर, क्योंकि कोई डायरेक्शन इसमें है ही नहीं, ना आई कैप है, ना जे कैप है, ना के कैप है, ठीक है ना। तो किसी भी डायरेक्शन को हम लोग एक्स वाई जेड स्पेस में 3 यूनिट वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं ना। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। तो कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर हमारा आई कैप, जे कैप और के कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो z इज इक्वल टू fx कोमा y, ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है और ग्रेडियंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जो ग्रेडियंट है दैट विल बी डिनोटेड विद दिस साइन del f, ओके, एंड द डेफिनेशन विल बी del f ओवर del x i cap प्लस del f ओवर del y ठीक है ना। और ये जो डेफिनेशन है मेरी, ये डेफिनेशन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए मैंने करी है। यस सर। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी सिमिलर फैशन में एक्सटेंड हो जाएगी। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन fx y z है, दिस ऑफ कोर्स आई मे डिनोट इट एज w, देन ग्रेडियंट ऑफ f विल बी गिवन बाय del f ओवर del x I cap plus del f over del y j cap plus del f over del z. So in this way, this gradient is a vector quantity. ठीक है ना। तो ये मैंने अभी तक इस क्लास में 2 डेफिनेशन आपसे करा दी, एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव और दूसरा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की डेफिनेशन सभी को क्लियर है ना? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उधर पीछे ऑन दिस साइड, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड लेट अस कम टू दिस पॉइंट। Relationship between directional derivative and a gradient vector, ठीक है। अपनी वही डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन पर हम लोग आते हैं, ठीक है ना। व्हाट वाज दैट? fx y, मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई पॉइंट p0 x0 y0 मुझे गिवन है और डायरेक्शन है वहां पर। व्हाट इज दैट? u इज इक्वल टू u1 i cap प्लस u2 j cap। वन थिंग इज देयर, दिस इज अ बेसिकली यूनिट वेक्टर। जब भी मैं डायरेक्शन वेक्टर की मैं बात करता हूं तो डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 1 होगा। सो अर्लियर आई मिस्ड इट, but it is presumed that this direction is a basically unit vector, ठीक है ना। तो ये ध्यान करने के लिए है हमेशा that such type of vector will be unit vector। सपोज कोई प्रॉब्लम आपको दिया एग्जामिनेशन में, एक वेक्टर u दे दिया और कहा कि इसके अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो आपको ये जरूर चेक करना है कि वो वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर है या नहीं है। यूनिट वेक्टर है तो नहीं है तो उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उसको क्या करना? यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना।
दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब जो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन था, x वाज इक्वल टू x0 प्लस u1x और y वाज इक्वल टू y0 प्लस u2x, ये है, ठीक है ना। अब मेरे पास फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू fx कोमा y, ठीक है। अब यहां पर मैं चेन रूल अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है ना। तो चेन रूल जब मैं लगाऊंगा तो df अपॉन ds मेरे पास क्या बनेगा, डेल f ओवर डेल x इंटू dx ओवर ds एंड प्लस डेल f ओवर डेल y इंटू dy ओवर ds। इज इट ओके? चेन रूल में करा चुका हूं पहले, अर्लियर फॉर पार्शियल डेरिवेटिव द चेन रूल वाज कवर्ड। तो अब यहां से ds ओवर ds जब मैं निकालूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, u1, और जब dy अपॉन ds निकालूंगा तो यहां से कितना आएगा, u2, ठीक है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू u1 इंटू डेल f ओवर डेल x प्लस u2 डेल f ओवर डेल। अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मैं जानता हूं। अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना होता है तो क्या होता है, आई कैप के कंपोनेंट जो होते हैं उनका मल्टीप्लाई प्लस जे कैप के जो कंपोनेंट होते हैं उनका मल्टीप्लाई प्लस के कैप के जो कंपोनेंट होते हैं उनका मल्टीप्लाई। और जब मैं इसको रिवर्स अप्लाई करूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं df over ds, this will be equal to del f over del x I cap plus del f over del y j cap dot u1 I plus u2 j. Is it clear to all of you? And what is this? This vector is the definition of gradient vector. So this is nothing but del f and dot, and what is this? This is the vector u. Is it okay? Clear to all of you? So in this way, the relationship between directional derivative and gradient vector can be like this: df over ds, that is the directional derivative at point p0 and in the direction of u, and this will be equal to gradient of f at what point? I am going to find the directional derivative at point p0. Of course, the gradient will be at point p0, okay, and dot u. So this is the definition. Again, another we can have another definition of directional derivative, and that is nothing but the dot product of gradient vector and the dot product of the given direction u. Okay, so till now I was having the definition of directional derivative in two dimension for two independent variables x and y. This definition can be extended for more independent variables, ठीक है ना। Because now here u is only I cap, j cap is there. Of course there can be k cap. अगर वहां पर k cap होगा तो ग्रेडियंट में भी क्या आएगा, k cap आएगा। तो तीन डायमेंशन के लिए भी हम लोग अब इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि आपके पास 3 डायमेंशनल वेक्टर है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और तब डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए कहता है, तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर देना है। कुछ जरूरी नहीं है कि अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसी के अलाउ निकाला जाएगा जिसमें केवल आई कैप और जे कैप का ही कंपोनेंट होगा। आई कैप, जे कैप, के कैप के भी कंपोनेंट हो सकते हैं, और फंक्शन में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर
3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वहां पर भी डिफाइन होगी, और उसको फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। सेंस ऑफ द डेफिनेशन रिमेन्स द सेम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्लियर टू ऑल ऑफ यू? The concept of gradient clear to all of you? And the relationship between a directional derivative and gradient clear to all of you? Fine? Okay. Now, let us come back to the geometric interpretation of a gradient vector. Okay? Geometric interpretation of a gradient vector. ठीक है। ऑफ कोर्स ग्रेडियंट वेक्टर में क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, del f ओवर del x है, del f ओवर del y है, del f ओवर del z है। ऑफ कोर्स क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, द प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन इज इन्वॉल्व, इज इट ओके। तो जब मैं केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन डिपेंडेंट वेरिएबल की मैं बात करता हूं और डेरिवेटिव की मैं बात करता हूं, तो वहां पर फिजिकल मीनिंग क्या होता है डेरिवेशन का। सपोज आई एम हैविंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल केस y is equal to f of x. What is the meaning of dy by dx? If it exists, of course. What I am pre-assuming that everything is existing. Non-existence वाली बात की मैं कर ही नहीं कहा। तो जब मेरे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो सिचुएशन में डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप किसका सर, y का विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन का कितना, हाँ स्लोप किसका, चेंज इन रेशियो बताता है कि अगर आप x को चेंज करेंगे तो y को कितना चेंज आएगा। हाँ वो तो है ही, लेकिन उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। देखो जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो मैं उसका एक कर्व ड्रॉ कर सकता हूं ना। यस सर। सपोज ये मैंने कोई कर्व ड्रॉ किया हुआ है एंड दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये सपोज कोई भी पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है ये कोई मेरा x एक्सिस पर x0 है और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है y0। तो पॉइंट हो गया x0, y। तो इस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू वो क्या शो करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट लाइन्स, ठीक है ना। और ये जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, अगर ये एंगल थीटा, तो टेंजेंट लाइन एट x0 y0, ठीक है, ऑफ कोर्स x0 y0 पॉइंट पर, इसका स्लोप अगर थीटा एंगल बन रहा है तो क्या होगा, tan थीटा। तो जो dy अपॉन dx है एट पॉइंट x0 y0 पर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10। तो बेसिकली जो डेरिवेटिव की वैल्यू है किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि डेरिवेटिव की, शायद मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब हम लोग डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव कब आता है, जब हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो या फिर हमारा कोई भी मूवमेंट होता है, ठीक है ना। हम लोग मूव कहां करते हैं,
टाइम में मूव करते हैं ना, t इक्वल टू 0 पे सपोज मेरी पोजीशन ये है, किसी टाइम t इक्वल टू किसी फर्दर t पर से t इक्वल टू 1 पर मेरी पोजीशन ये है, t इक्वल टू 3 पर। तो जब हम लोग मूव करते हैं तो किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं? x के रेस्पेक्ट में, सॉरी टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं, जिसको हम लोग t से डिनोट कर देते हैं। और चेंज क्या होती है? मेरी पोजीशन, ठीक है ना। और जब मैं मूव करता हूं, मेरा मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट हमारा क्या है, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। मूवमेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी मेरा मूवमेंट होगा तो मेरे मूवमेंट का एक मैग्नीट्यूड होगा और मेरे मूवमेंट की एक डायरेक्शन, ठीक है ना। जितने भी मूवमेंट हैं पूरे वर्ल्ड में वो हमेशा किसके अलोंग होते हैं? किसी ना किसी कर्व के ही अलोंग होते हैं। तो सपोज कोई भी पार्टिकल है या ये वो मूव कर रहा है और किसके अलोंग कर रहा है? इस कर्व के अलोंग y इक्वल टू fx के अलोंग मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट पर मूवमेंट है, तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन है। लेकिन चूंकि कर्वेचर है तो हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है ना। और हमेशा मूवमेंट होता है आपका डिफरेंशिएबल कर्व्स के अलोंग, ठीक है ना। क्योंकि डिफरेंशिएबल कर्व आपको ये एंश्योर करता है कि किसी भी एक पॉइंट पर केवल एक ही डायरेक्शन आपके पास अवेलेबल होगी, जिसके के अलोंग मूवमेंट होगा, दो डायरेक्शन नहीं होगी। तो हमेशा किसी भी कर्व के हर एक पॉइंट पर वो जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होती है? टेंजेंट लाइन के अलोंग होती है, ठीक है ना। तो जो डेरिवेटिव है, अब अगर मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर r है, अगर मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है ना, r इज नथिंग बट पैरामेट्रिक फॉर्म में r विल बी इक्वल टू सम फंक्शन gt along I cap plus some function ht along j cap and some function say gh let me have mt along, ठीक है। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल अगर किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है तो वो पोजीशन वेक्टर, ये सब आप लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में किया होगा +2 लेवल पर, वेक्टर rt this is given in the parametric form gt I cap plus st j cap plus mt k cap, ठीक है ना। ये क्या है? मेरा पोजीशन वेक्टर। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूं? इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो वेक्टर dr over dt this is nothing but a velocity। और अगर सेकंड डेरिवेटिव करता हूं d2r over dt square this is nothing but a acceleration, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा इसकी फिजिकल एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स की, हम लोग अपना पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसी में हमारी मेन एप्लीकेशन इसकी आती है जब हम लोग मोमेंट की बात करते हैं, डायनेमिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर dr अपॉन dt फर्स्ट वेक्टर है, डेरिवेटिव वेक्टर है। तो डेरिवेटिव वेक्टर कर्व के अलोंग क्या होगी? एक टेंजेंट लाइन होगी और उसका स्लोप किससे मिलेगा? डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तो केस है हमारा जब वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि मेरे पास क्या है? कर्व है, ठीक है ना। अब लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है मेरे पास? जब मैं 3 डायमेंशन में आ जाता हूं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, ठीक है ना। तो कर्व की जगह मुझे क्या मिलती है? सरफेस। कर्व की जगह क्या मिलती है मुझे? सरफेस। तो अगर मेरे पास
z इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन है। और अगर एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू सी है, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी ना किसी सरफेस को ये रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट ए surface. This is explicit expression, okay, and this is implicit. ठीक है ना? ये मेरे पास बेसिकली क्या है? एक सरफेस है, राइट? अब जब सरफेस मेरे पास होती है, ठीक है, जैसे मैं यहां पर प्लेन पे मूव कर रहा हूं, प्लेन इज ए सरफेस, लेकिन मूवमेंट कब होता है? मूवमेंट हमेशा किसी ना किसी कर्व के ही अलोंग होगा। ऑल ऑफ यू भाई, मैं किसी भी सरफेस पे मूव करूं, ये प्लेन है, ये प्लेन भी तो एक सरफेस ही है ना, लेकिन जब इस प्लेन पर मैं मूव करूंगा तो कहां मूव करूंगा? किसी ना किसी कर्व के अलोंग करूंगा, और वो कर्व कहां लाई कर रहा है? उस सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना? तो 3 डायमेंशन में किसी भी कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म में। वेक्टर आर टी इज इक्वल टू, अभी लिखा था मैंने, जी टी आई कैप प्लस एच टी जे कैप प्लस एम टी ठीक है, ठीक है। अब अगर ये कर्व इस सरफेस पर लाई करेगा तो जो ये आर टी के एक्स पोजीशन वेक्टर, वाई पोजीशन वेक्टर और जेड पोजीशन वेक्टर हैं, वे इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई अगर ये कर्व इन सरफेस पर लाई कर रहा है तो क्या होगा? ये इन सबको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो अब किसी भी पॉइंट पर सपोज यही मैंने एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी ये रिप्रेजेंटेशन लिया, या z माइनस एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको मैं ऐसे भी लेके आ सकता हूं ना, z माइनस एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये दिस इज स्पेशल फॉर्म ऑफ दिस इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन। यहां पर एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड जो है मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है? z माइनस एफ एक्स कोमा वाई, ठीक है ना? तो ये जो पॉइंट एक्स वाई जेड है सरफेस पर, किसी भी पॉइंट के लिए, आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए, उस पॉइंट पर ग्रेडियंट की वैल्यू निकालो और उस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालो, और दोनों के बीच का जरा एक बार रिलेशनशिप देखो, ठीक है ना? सपोज आई एम कमिंग हियर, अभी तक ये डेटा क्लियर है ना सभी को? मिटा दूं? So coming back to the surface, fx comma y comma z is equal to c. Is it clear? और इसी पर एक है वेक्टर आर टी इज इक्वल टू जी टी आई कैप प्लस एच टी जे कैप प्लस एम टी, ठीक है? इज इट ओके? इसको मैं राइट डाउन करता हूं। अब ये जो एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड फंक्शन है, इसके लिए ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेडियंट ऑफ एफ विल बी इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड। Is the time over? Okay, so we stop here, no problem. Right? In the next class I shall restart.